नमस्ते, कैसे हैं आप सर? और मेरी अब तक की रीडिंग्स आपको कैसी लगी हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। पर्सनल रीडिंग्स अगर आप मुझसे कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। उस इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आज की रीडिंग आपकी लव रीडिंग है। मैं 3 अलग-अलग डेक्स हम निकालेंगे और फिर आई वांट यू टू ब्रीथ इन ट्वाइस, टेक 2 डीप ब्रीथ्स एंड देन select your deck, select your guidance. Deck 1, love reading. Deck 1, love reading. Come on, claim your energies. Breathe in, relax, claim your energy. Deck 1 is here. Love reading. Deck 2, love reading. Deck 2. Comment your deck. Deck 1, 2, and 3. Love reading. Deck 2. Okay, we have deck 2 is also here. Deck 3, love reading. Deck 3, claim your guidance. Deck 3, claim your guidance. Okay, we already have 2 cards falling for you, deck 3. If you have selected this deck, this is deck 1, this is deck 2, and this is deck 3. I'm again repeating. Select your deck and claim your energies in comment section. Let's see, deck 1 आपके लिए क्या रिवील कर रहा है? Your love reading. Okay. Alright. And okay. So let's start with this card. Um, I can see you taking leadership in your love life, in your recent past. So, whichever relationship we are talking about, and I can mostly see that this is a breakup situation. Uh, okay, so it is about your ex. Okay, if you have broken up, this is your deck. So, I can see that you took the lead in this relationship. You always took the lead in this relationship. You were disappointed. आपने इस relationship को बहुत seriously लिया. आपको एक disappointment face हुई इस relationship में और आपका recently breakup भी हुआ है आपके partner से इस relationship में. I can see the recovery happening. You are finally getting the courage to recover from all this. But then there is reconciliation coming in. Reconciliation, your partner must be coming back. Your ex must be coming back. आपका ex वापस आ रहे हैं और you can, because now you are in good energy. Okay, now you are finally, this was you earlier and now you are healing. Now you are finally healing and now your partner is coming back to you. This is how energies play. Okay, मतलब once you pull out all your energies from someone, from a situation, and then those energies are again attracted towards you. तो आप फाइनली आप मूव ऑन करने का करेज आपके अंदर आ रहा है. अभी तक की आपकी ये सिचुएशन रही है, फाइनली यू आर गेटिंग अप टू टेक द स्टेप टुवर्ड्स मूविंग ऑन. पर यहाँ पे आपके एक्स वापस आ रहे हैं डेक 1 अगर आपने चूज किया है तो. एंड ओके, so definitely I can see there is your partner must be easily influenced, easily influenced by others' opinion on your relationship. तो आपके जो एक्स हैं उनका हमेशा से इस तरह का एक व्यू रहा है आपकी तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ, कि दूसरे जो भी उस पर ओपिनियन अपना देंगे वो उससे इजीली इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, इजीली मैनिपुलेट हो जाएंगे उस चीज़ से. एंड दे आर वेरी सेंसिटिव, दे ऑलवेज बिहेव वेरी सेंसिटिव in relationship, and you would have to take the lead of holding up to this relationship. तो आप हमेशा से उस relationship को अभी तक होल्ड करते जा रहे थे, but then you finally gave up. Now you are even ready to move on, but अभी वो आपके एक्स वापस आ रहे हैं और अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ समवन इन्फ्लुएंस. तो किसी ने उनको मे बी अभी समझाया है कि उन्होंने गलती की आपको छोड़ के या whatever. तो नाउ दिस पर्सन इज कमिंग बैक टू यू. I don't know what you are going to do. Maybe next reading, or if we would have some time, we would cover up
what you guys should do in your relationships. So this is deck 1 done. Now we will do deck 2. Okay, we have 2 reverse, 10 of Pentacles, 9 of Wands, and 1 upright, 5 of Wands. Okay. So at present, I can sense your energy कि you are conflicting among multiple things, ठीक है? और multiple things in the sense आपके I'm not saying multiple relationships, it can also be multiple responsibilities, पर maybe multiple people are around you trying to approach you, और किसी एक के साथ आप ऑलरेडी डेट कर रहे हैं, और मे बी वाइल बीइंग इन दैट रिलेशनशिप जिसके साथ आप हैं, आपके पास इतना सारा काम है, इतनी सारी चीजें हैं दूसरी हैंडल करने के लिए, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसके कारण यू आर फीलिंग लाइक दिस कि मतलब ना आपको सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ने घेर दिया है एंड यू आर जस्ट सपोज टू फाइट विद एवरीथिंग, द लाइफ हैज बिकम अ फाइट फॉर यू नाउ कि हर चीज आपको संभालनी है, हर चीज में फाइट करना है, इस तरह का एक फीलिंग आपके अंदर आई कैन सेंस। एंड दिस इज बिकॉज आपकी लाइफ में आपने ऑलरेडी एक फेलियर फेस किया है, फाइनेंशियल फेलियर फेस किया है, और दैट वाज योर मिसफॉर्चून, ओके, दैट वाज रिटन इन योर डेस्टिनी कि ये होने वाला है आपके साथ, बट नाउ यू आर ट्राइंग टू रिकवर आउट ऑफ दिस, पर आप इतने एग्जॉस्टेड हैं और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो जो आपकी स्पीड है इस चीज़ से हील करने की, वो फाइनेंशियल फेलियर से आगे बढ़ के उसको उस पर वर्कआउट करने की, वापस से अपने फाइनेंसेस रिकवर करने की, ये सब इतनी स्लो हो रही है, और एट द सेम टाइम आपके रिलेशनशिप में भी ये हो रहा है, आपका रिलेशनशिप भी कहीं ग्रो नहीं कर पा रहा, यू आर फीलिंग लाइक इट इज स्टक बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स, मतलब ऐसे आप बहुत बिजी हैं, एट द सेम टाइम में कभी आपको फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको समझ नहीं रहे हैं, और यू आर कंफ्यूज, योर पार्टनर इज कंफ्यूज कि इस रिलेशनशिप को कहाँ लेकर जाना है, यू शुड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल और नॉट, और यू शुड जस्ट ब्रेकअप, इस तरह की एक कंफ्यूजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज मैं इसमें सेंस कर पा रही हूँ आपके लिए। एवरीथिंग इज मूविंग वेरी स्लो फॉर यू, यहाँ पे आप ऐसे आपको लग रहा है ना कि इतना बैड लक आ गया आपकी लाइफ में कि कुछ, यू आर जस्ट फीलिंग सो वीक एंड इल, और ऐसा लग रहा है आप बहुत बीमार हो रहे हैं, यू आर वेरी ओवरवेल्ड विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड यू आर अनेबल टू हैंडल ऑल दिस सिचुएशन। तो अगेन अभी तो आपकी लाइफ में यही सब चल रहा है। आफ्टर दिस, आफ्टर कंप्लीटिंग 3 decks, आई विल पुल आउट 3 more cards, 1 for each deck, जिसमें आपके लिए गाइडेंस होगा कि आपको इस सिचुएशन के आगे क्या करना चाहिए। और शुड आई पुल इट आउट वन कार्ड नाउ ओनली, शफल 1 card नाउ ओनली। ठीक है, अभी आपके लिए मैं, अभी क्योंकि आप इतनी स्टक सिचुएशन में हैं, डेक 2 अगर आपने चूज किया है तो मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड, लेट्स सी, ओके, यू ऑलरेडी हैव वन गाइडेंस कार्ड बाय यू। सी आपके लिए ये गाइडेंस आ रहा है आपके कार्ड्स में कि समवेयर और द अदर थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व इन योर रिलेशनशिप ऑल्सो। कुछ टाइम में आपको ये रिविलेशन होगा, एंडिंग आएगी इस चीज़ की, स्लो चेंजेस हैं बट ये रिविलेशन आएगा, और मे बी आप ऑलरेडी इस चीज़ को डाउट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी रीज़न है कि आप अपने रिलेशनशिप में आगे जाएं या ना जाएं, इसमें आप कंफ्यूज हैं। तो ये रिविलेशन आपका आने वाला है कुछ टाइम में, ये रिलेशनशिप आई कैन सी समवेयर इट इज एंडिंग। मैं आपके लिए इसको शुगर कोट करके नहीं कहूंगी, जो भी मेरे पास कार्ड्स में इंफॉर्मेशन है आई विल गिव यू। तो एंड एक्चुअली दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज नो प्रोग्रेस इन योर रिलेशनशिप, क्योंकि योर पार्टनर इज ऑल्सो कंफ्यूज बिटवीन यू एंड दिस अदर पर्सन। तो दे आर नॉट, मतलब वो आपको छोड़ भी नहीं रहे हैं, वो आपके साथ आगे स्टेप भी नहीं लेना चाह रहे हैं, दे आर सो कंफ्यूज, बट वेरी सून आई कैन सी कि ये रिविलेशन होगा, और मे बी आपको रिविलेशन हो चुका ही, हुआ जस्ट कंफ्यूज कि मैं इनके साथ रहूं या ना रहूं अभी, मतलब उन्होंने माफी मांग ली होगी, चीजें सॉल्व करने की कोशिश की होंगी, नाउ यू आर कंफ्यूज कि मैं रहूं ना रहूं, बट दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू एंड फॉर यू, डेक 2। और धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिएगा, इस चेंज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे इसको बनाइए, तो इट विल हेल्प यू ग्रो ओनली। ये सिर्फ आपके लिए एक लेसन बन के आया था रिलेशनशिप। तो डेक 2 के लिए मैंने गाइडेंस कार्ड ऑलरेडी देख लिया है, मैं डेक 1 के लिए भी पहले गाइडेंस कार्ड आपके लिए देख लेती हूँ, बिकॉज यू आर फीलिंग सो स्टक और कंफ्यूज कि यहाँ पे क्या करना है, आपके एक्स वापस आएंगे तो। गाइडेंस कार्ड फॉर गाइडेंस कार्ड फॉर डेक 1, गाइडेंस कार्ड फॉर डेक 1, ओके, वी ऑलरेडी हैव अ गाइडेंस कार्ड। हम्म हम्म
Cards are simply asking you to move with the mental clarity, your inner intuition and truth. तो इस पूरी सिचुएशन में ना आपको सच ऑलरेडी पता है, सच ऑलरेडी पता है सिचुएशन का, यू ऑलरेडी नो द ट्रुथ, एंड कार्ड्स आर आस्किंग यू टू इंस्टेड ऑफ गोइंग विथ योर डिल्यूजन, गो विथ योर ट्रुथ. सो आपके लिए यही गाइडेंस है डेक वन, कि आप इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरे रिलेशनशिप में, व्हाट इज योर हार्ट टेलिंग एंड द ट्रुथ दैट यू माइट बी इग्नोरिंग अंटिल नाउ. तो जो भी सच है इस रिलेशनशिप का वो आपको ऑलरेडी पता है, आपने इसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर लिया है. अब अगर यू नो, योर हार्ट नोज कि आपको वापस रिकंसिलिएशन करना चाहिए, जाना चाहिए, to choose that truth, but listen to your heart, not the delusion. तो अपने जो आप चाहते हैं उस चीज के पीछे ना जाकर जो आपको करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में, उसके पीछे आपको जाना चाहिए. आपका वैसे भी लीडर पर्सनालिटी है, बॉर्न लीडर पर्सनालिटी है, अपनी लीडरशिप लीजिए इस रिलेशनशिप में. और अगर आपको लगता है कि ये रिकंसिलिएशन करना चाहिए तो कीजिए, बट विथ ऑल द फैक्ट्स क्लियर, विथ ऑल द मेंटल क्लैरिटी की हाउ इज इट गोइंग टू बी अहेड, और विथ ऑल द बाउंड्रीज सेट. तो अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको अपने एक्स के साथ वापस रिकंसिलिएशन करना है, तो देन you have to clarify all the boundaries and problems issues you always had in this relationship. तो उन चीजों को अगर आप मेंटल क्लैरिटी के साथ आगे लेके जाना चाहते हैं तो लेकर जाइए. और ऑन द अदर हैंड, अगर आपका इनर ट्रूथ, इनर इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है ऑन द बेस ऑफ फैक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस, आई एम अगेन रिपीटिंग, अपने अनुभवों को से सीख कर, आपने जो भी सीखा है अंटिल नाउ इस रिलेशनशिप में, उसको सीख कर व्हाट आर द फैक्ट्स यू नो अबाउट दिस रिलेशनशिप, अबाउट दिस पर्सन, अबाउट योरसेल्फ इनटू दिस रिलेशनशिप. तो अगर वो फैक्ट ये है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको नहीं रिकंसिलिएशन करना चाहिए, तो उसे चूज कीजिए. तो जस्ट गो विद द फैक्ट्स, गो विद योर एक्सपीरियंसेस, वट एवर डिसीजन यू टेक, इट शुड गो विद द ट्रूथ एंड मेंटल क्लैरिटी. दैट्स इट, दैट्स द गाइडेंस फॉर डेक वन. मैं डेक थ्री की रीडिंग चेक कर रही हूँ. डेक थ्री, लेट्स सी डेक थ्री, what is going on with your love life. Okay, if you are, I think you yourself are very confused. There is maybe in your card already. There is just one thing. I guess you are trying to escape from this relationship. Okay, आप इस relationship से escape करने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक. While cards are suggesting you, okay, this is also because this is long distance. तो ये क्योंकि long distance है आपका relationship ना, तो you are trying to escape, you are trying to withdraw from this relationship, क्योंकि आपको लग रहा है मे बी कि you don't know if it will work out or not. long distance है, maybe you are not too much into it right now. तो इसलिए इस तरह की आपके अंदर disappointment है कि यार you just wish कि ये long distance नहीं होता, तो you would have tried it out. Otherwise right now you are just trying to escape it. Okay, but see, there are cards are actually, the life is asking you to लेट गो ऑफ योर लिस्ट. ठीक है, एक जो आपने लिस्ट बनाई हुई है ना मेंटली कि ऐसा ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए, ऐसा ऐसा इंसान आपके लिए चाहिए, आपको उसको लेट गो करने के लिए कार्ड्स, यूनिवर्स आपको इस टाइम पे सिचुएशन दे रहा है, प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने. एंड यू आर बीन आस्क्ड टू सरेंडर लाइक दिस. ओके, यू आर बीन आस्क्ड टू सरेंडर लाइक दिस. पॉज, थिंक, बहुत ज्यादा इसको कोई भी डिसीजन आउट ऑफ बोर्डम मत लीजिए कि अच्छा बोरिंग फील हो रहा है तो आप इस रिलेशनशिप में हो, नहीं तो आप नहीं हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, इस तरह के डिसीजंस आप मत लीजिए. कार्ड्स आर आस्किंग यू टू चेंज अ लिटिल बिट. आपको एक पैटर्न, एक साइकिल ब्रेक करने को कहा जा रहा है. आपको कहा जा रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में आने दीजिए एक चेंज की तरह. मे बी अभी तक आपने कभी लॉन्ग डिस्टेंस एक्सपीरियंस ना किया हो, या इस तरह का रिलेशनशिप आपने एक्सपीरियंस ना किया हो, बट कार्ड्स आर आस्किंग यू to change your ways to reach your goal. ठीक है, your goal is to, ultimately your goal is to get love or a good relationship. पर जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो you are somewhere scared, और आप उसको एक तो ऑलरेडी आप स्कैर्ड हैं रिलेशनशिप से, और उसके बाद एक नई आपके सामने नया तरह का सारा सिचुएशन प्रेजेंट किया जा रहा है. द पर्सन माइट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू हैव ऑलवेज चोजन, और सिचुएशन पूरी बहुत अलग हो सकती है. बट कार्ड्स आर आस्किंग यू टू सरेंडर. तो कार्ड्स आर आस्किंग यू टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, कि नया चेंज अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए. यहाँ पे आप
देयर इज दिस फियर कि फियर इन कार्ड्स आई कैन सी कि आप शायद यहाँ पे केयरलेस हो सकते हैं इस सारी सिचुएशन को लेकर। एक प्राइड वाली इगोइस्टिक साइड से आप इस रिलेशनशिप को लेकर डिसीजन ले सकते हैं विच विल बिकम अ मिस्टेक। ओके, तो कार्ड्स आर आस्किंग यू टू सरेंडर इनटू दिस रिलेशनशिप फॉर नाउ, और डोंट प्ले स्मॉल। केयरलेस होकर इस अपॉर्चुनिटी को, ये एक अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है आपके लिए, मिस मत कीजिए। Cards are asking you to move ahead in this relationship. Let's see where this relationship will take you. The last card for deck 3. The last card for deck 3. Where this relationship will take you. Okay, we already have a card. Hmm. सी आपके पास ना अभी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, उस चॉइसेस के कारण आप ये मिस्टेक कर रहे हैं और ऐसे इंसान को जाने दे रहे हैं, इस तरह की आपके अंदर फीलिंग है। बट ये रिलेशनशिप में अगर आप अपने आप को सरेंडर करते हैं तो दिस रिलेशनशिप विल ब्रिंग आउट, विल टच योर हार्ट, विल टच इनर वैल्यूज, आपकी इनर वैल्यूज को ये रिलेशनशिप टच करेगा, आपकी विल पावर को आपके सामने लेकर आएगा। जो चीज़ें अभी तक आपको लगती हैं कि शायद मैं आपको लगता है कि शायद आप इस रिलेशनशिप को या किसी भी रिलेशनशिप को इतना टाइम, इतना एफर्ट नहीं दे सकते, बट कार्ड्स आर सेइंग दैट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू सी व्हाट यू कैन एक्चुअली डू। तो दिस इज इट। डेक 3 के लिए मैं ये रीडिंग क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।